and welcome. Welcome to learning session number 4 of chapter number 2 of Science 1, which is periodic classification of elements. So far in this chapter, what all have we seen? We have seen Doberine's triads, we had seen Newland's law of octaves, then we had seen Mendeleev's periodic table, and in the last learning session, we had seen merits. Merits matlab advantages, and demerits. Demerits matlab disadvantages of Mendeleev's periodic table. You'll need to know the merits and demerits of all the periodic tables. Okay, Newlands का भी merits demerits पता होना चाहिए, Mendeleev का भी merits demerits पता होना चाहिए, Doberine's का भी merits demerits पता होना चाहिए. I think in 2019 they had asked a question based on merits or demerits of Mendeleev's periodic table for 3 marks in board exam. So make sure you're by hearting all the merits and demerits of all these ways of classifying elements. Okay, so today we're going to see the modern periodic table, which is also called as the long form of the periodic table. Okay, and we're going to just introduce ourselves to the modern periodic table by seeing its structure. Okay, so this was one activity that I had given you all as practice for yourself to do, right? I had asked you all to write the molecular formula of oxides of the following elements, और किसको refer करना था by referring Mendeleev's periodic table. Okay, so I'm just going to quickly share. So the first question was about oxides. The second question was about which compounds they will form, which compounds they will form with hydrogen. ओके और यहाँ पे एलिमेंट्स के दिए, तो ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, अगेन बाय रिफरिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देख के ये लिखना था, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर. सो द आंसर्स आर दिस. ओके, सो जस्ट क्विकली चेक whether your answers are correct or not. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you all to pause the video here and quickly check your answers which you had written in the last learning session. Okay, I hope you all have checked your answers, and if you have got a few of them wrong, I'm going to quickly explain you all a few of the elements. Okay, few answers. So question, ये जो पहले ऊपर के दो टेबल्स है वो क्वेश्चन 1 के आंसर है, नीचे के जो दो टेबल्स है वो क्वेश्चन 2 के आंसर है. ओके, सो लेट मी टेक कैल्शियम फॉर एग्जांपल. सो कैल्शियम का फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट, क्वेश्चन कैल्शियम का, सो उसका कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख के बताना था. सो यू गो टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फाइंड कैल्शियम. वेयर इज कैल्शियम? कैल्शियम हियर. सो कैल्शियम इज हियर. सो कैल्शियम ग्रुप 2 का है, राइट. सो ग्रुप 2 में जाओ और वहां पे देखो ऑक्साइड के साथ क्या फॉर्मूला दिया, RO. RO यानी आर के पे तुम लोग ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो, तो BeO हो सकता है, MgO हो सकता है, सिमिलरली CaO भी हो सकता है. सो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, CaO, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दिया. सो द आंसर शुड हैव बीन CaO, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है. अनदर, लेट अस टेक क्लोरीन फॉर एग्जांपल. क्लोरीन का क्या फॉर्मूला बनना चाहिए ऑक्सीजन के साथ? So let us find chlorine first. Here is chlorine. Chlorine is from group 7, right? Group 7 में क्या फॉर्मूला दिया ऑक्सीजन के साथ, R2O7. So R के यहाँ पे क्लोरीन रख दो, so Cl2O7 हो जाएगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ओके, जहां कहीं पे भी वो एलिमेंट है उसके ग्रुप में, जो ग्रुप में फॉर्मूला लिखा होता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, so the answer should be Cl2O7. Similarly for hydrogen also we can do. Let me take नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल. ओके, नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, फाइंड नाइट्रोजन फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, वेयर इज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन यहाँ पे. ओके, सो नाइट्रोजन इज ग्रुप 5. सो ग्रुप 5 में हाइड्रोजन के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखा है, RH3. ये इज नॉट क्यूब. ओके, दिस 3, RH3. सो आर के पे नाइट्रोजन रख दो, सो NH3, दैट शुड बी योर कंपाउंड यूजिंग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. So NH3 है क्या आंसर? Yes, and answer is NH3. So just quickly check. If you haven't done it right now, try it and then check your answer. Do not directly copy. I'm going to move ahead. Again, I'm going to discuss a few end of chapter questions based on Mendeleev's periodic table, जो हम लोग ने already पढ़ लिया. So one is write a short note on Mendeleev's periodic law. We know what Mendeleev's periodic law is, right? The properties of elements are a periodic function of the atomic masses. Okay, that's the periodic law. उस पे एक short note लिखना है. Okay, so this is how the answer will look like for that question. The first point is an introduction. Okay, directly answer शुरू करने के बजाय they are giving an introduction. Mendeleev organized the periodic table on the basis of atomic mass of elements. So that's your introduction. Then
again explaining the introduction. The second point is just explanation of introduction. When he arranged the 63 elements known at that time in increasing order of their atomic masses, he found that chemical and physical properties of elements showed repetition after certain fixed interval. जैसे ही मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दिया, तो व्हाट ही फाउंड वाज chemical or physical properties of those elements will repeat after a certain interval. So ऐसा अरेंज करते गया तो कुछ ना कुछ देर के बाद रिपीटेशन मिलेगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो उसने उस सो देन इन दैट केस मेंडलीव जस्ट पुट दैट एलिमेंट बिहाइंड या फिर बिलो द मैचिंग एलिमेंट जिसके साथ प्रॉपर्टीज मैच हो रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट वाज explanation of the method, okay, and explanation of the introduction, and the last point is your important point, okay, the most important point, the actual answer to this question. On the basis of this finding, he stated that properties of elements are a periodic function of their atomic masses. ये line तुम्हें by heart होना चाहिए, it's a very important line. So periodic function यानी क्या, तुम अरेंज करते जाओगे तो कभी ना कभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होने वाले, इसके लिए उसको पीरियोडिक बोल रहे हैं, हर थोड़े टाइम में रिपीट होने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. ओके, this is known as the Mendeleev's periodic law. So that's your answer to that question. Kindly copy this answer and start by hearting the answers. Only when you'll by heart answers will you be able to write good answers in the board exam. Okay, next question you all can try by yourself first. Okay, so write a short note, position of isotopes in Mendeleev's and modern periodic table. Modern periodic table में position क्या होगा isotopes का, you don't really know because हम लोग ने modern periodic table अभी तक discuss नहीं किया है, but just leave modern periodic table for now and try to write about positions of isotopes in Mendeleev's periodic table at least. Okay, by yourself. Isotopes, again let me remind you, we had seen in the last learning session, isotopes यानी एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे बट एटॉमिक मास अलग होगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं. ओके, न्यूट्रॉन, व्हाट इज एटॉमिक मास? बेसिकली एटॉमिक मास इज मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते हैं. सो अगर न्यूट्रॉन एक दो कम ज्यादा हो गए तो मास चेंज होने वाला है एटम का. सो आइसोटोप्स यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए मास अलग हो सकता है. ओके, so yes, write the answer by yourself. I'm going to wait for 5 seconds. Please pause the video and try to write the answer by yourself. Okay, I hope you have tried writing the answer. Again, only when you try to write the answer by yourself and then check your answer, you will find that you're improving, or else you won't keep improving. All you will see is just understanding whatever I'm teaching and you'll just by heart it. But if you really want to learn how to write answers, you need to try it by yourself. Okay, so this is the answer. Okay, give me a minute. Okay, so first point, what is the connection between isotopes and Mendeleev's periodic table? That's your first point. Okay, so isotopes were discovered long time after Mendeleev developed the periodic table. Okay, so मेंडलीव को कुछ पता भी नहीं था आइसोटोप्स के बारे में, वो उसने टेबल बनाने के बहुत टाइम बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए. दैट्स योर पॉइंट नंबर 1. सेकंड, टॉक अबाउट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स होते क्या है? ओके, so all isotopes of the same element have different atomic mass but same atomic number. Atomic mass अलग है but atomic number same रहेगा. They also have the same chemical properties. Why same chemical properties? If you have the number of electrons same, then the chemical properties will also be the same because जो कुछ भी chemical properties है वो electrons decide करते हैं, right? So that's the second point is about isotopes. So just check in your answer. तुम लोग ने first point ये isotope और Mendeleev के periodic table का connection बताया क्या? Did you explain what is isotopes? Then you come to position of isotopes in Mendeleev's periodic table. So in Mendeleev's periodic table, elements are arranged in increasing order of their atomic masses such that chemically similar elements are placed together in the group. मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कैसे बना है इसके बारे में थर्ड पॉइंट में बोला है. सो क्या बोला है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दिया एंड जो कोई भी केमिकली सिमिलर है उसको साथ में एक ग्रुप में रख दे. एक ग्रुप में यानी एक कॉलम में. सो वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स. ओके, so it was difficult to place them in Mendeleev's periodic table. Place them मतलब them यानी isotopes की बात हो रही है. Okay,
Then last point, in modern periodic table, elements are arranged in increasing order of atomic numbers. So Mendeleev ने atomic mass से मास के बेसिस पे अरेंज किया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करने वाले. ओके, हेंस ऑल आइसोटोप्स विल बी प्लेस्ड इन द सेम एलिमेंट, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर कुछ भी हो, एटॉमिक मास कुछ भी हो, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, उसका पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विल रिमेन सेम. ओके, सो दैट्स योर आंसर टू द सेकंड शॉर्ट नोट. ओके, ऑल्सो दोनों क्वेश्चंस में आई हैवंट अंडरलाइंड एनी important keywords. So again, I am trusting you all to do that. So you all should also get into the habit of how to underline important points, important keywords in your answers. Okay, so यहाँ पे इस आंसर में भी खुद से की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, एंड इस आंसर में भी खुद से की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो. व्हाट आर की पॉइंट्स? की पॉइंट्स और की वर्ड्स आर बेसिकली उस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, जिसको सिर्फ उस वर्ड को भी मैंने रीड कर लिया तो मुझे समझ जाना चाहिए पूरा का पूरा आंसर. Okay, so try to underline the important and keywords in these two answers. Okay, so this is your modern periodic table. Okay, this is your modern periodic table. So you can see hydrogen over here, you can see helium over here, and टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कुछ तो लिखा है. व्हाट इज वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा है? यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6. Again, if this is not clear in your mobile while you're watching the video, try to open a textbook. Okay, textbook में ये modern periodic table same to same दिया. So यहाँ पे जो top left corner में वो numbers दिए, वो numbers are basically atomic numbers. Okay, so hydrogen का atomic number 1 है, lithium का atomic number 3 है, sodium का atomic number 11 है. How do we remember the atomic numbers and the names of the first 20 elements? Using that long sentence we have made. Hi, hello, listen BBC News on Friday night. नामांगो अल्लासित पेप्सी सोडा कोला ऐश्वर्या कटरीना कैफ. ये इतना फास्ट बोलने आना चाहिए. और फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय, इसका कौन सा एलिमेंट है ये भी याद होना चाहिए. मतलब पता चला तुम लोग ने लाइन बाय हार्ट कर लिया, बट उसके रिलेटेड कौन सा एलिमेंट है तुम लोग को याद नहीं है. दैट शुड नॉट हैपन. सो ऐश्वर्या राय इज आर्गॉन फॉर एग्जांपल, ये तुम लोग को पता होना चाहिए. एंड आर्गॉन, फिर अगर तुम काउंट करोगे, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ. सो ये 20th है, ये 19th है, यानी ऐश्वर्या राय इज 18th नंबर पे. 18th यानी आर्गॉन का एटॉमिक नंबर विल बी 18. सो यहाँ पे देखो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 आ गया. सो तुम लोग को उनके एटॉमिक नंबर्स भी उससे बाय हार्ट हो जाएंगे. ओके, now let us look at certain things in this in this modern periodic table. There are many things to discuss, there are many things to notice, there are many things to look at, but let us do that step by step. Okay, so give me a minute. Yes, the classification of elements resulting from an arrangement of elements in increasing order of the atomic numbers यहाँ पे चेंज हुआ है. अब तक जो कोई भी इस पे काम कर रहा था, डोबेरिनियर काम कर रहा था, न्यूलैंड्स काम कर रहा था, मेंडलीव ने भी काम किया और बहुत प्रोग्रेस भी किया मेंडलीव ने, और वो लोग सब लोग एटॉमिक नंबर्स के ऊपर अरेंजमेंट नहीं कर रहे थे, एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज कर रहे थे. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया. ओके, और व्हाई इज दिस बेटर देन एटॉमिक मास? सो एटॉमिक नंबर क्या बोलेगा? से फॉर एग्जांपल आई से, हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कस किया, राइट, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18. सो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, मतलब उसके न्यूक्लियस के बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. और कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट के साथ बॉन्ड करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? मास पे थोड़ी डिपेंड करता है. मास क्या बता रहा है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं मास को. ओके, और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखते हैं. और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे? न्यूक्लियस में. सो जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस का कुछ काम नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, बॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन कितने, उससे फर्क पड़ता है. ओके, सो आर्गॉन का 18 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्गॉन का एटॉमिक मास क्या है. सो दैट्स व्हाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is much better than Mendeleev's periodic table. क्योंकि Mendeleev's periodic table में atomic mass को consider किया है, but modern periodic table में atomic number को consider किया है, and that's much more important. अगर atomic number पता होगा तो तुम लोग उसे chemical properties बहुत easily बता सकते हो. Okay, the properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic numbers. This point I've already explained you. इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए अगर प्रॉपर्टीज तुम लोग को बताने हैं तो इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन कितने उससे तुम लोग बता सकते हो, उसमें एटॉमिक मास कितना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट, as a result most of the drawbacks of Mendeleev's periodic table appear to be removed। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का एक प्रॉब्लम था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि आइसोटोप्स केमिकली वो लोग सेम होते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उनका मास अलग अलग है, तो अभी उनको अलग अलग रखिए क्योंकि मास अलग अलग है, या फिर साथ में रखिए क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। सो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है तो सेम जगह पे रखेंगे, तो एक ड्रॉबैक खत्म हो गया। बट वन ऑफ द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक यानी क्या, ड्रॉबैक, डीमेरिट, डिसएडवांटेज, तीनों का मीनिंग सेम है। ओके, बट हाउएवर एक ड्रॉबैक नहीं निकलता। कौन सा ड्रॉबैक? एम्बिग्विटी अबाउट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इफ यू सी, हाइड्रोजन को यहाँ पे रख दिया अल्कली मेटल्स के साथ, बट हाइड्रोजन का और अल्कली मेटल्स मेटल्स के साथ भी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकते हैं। ओके, हैलोजेंस के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन एक्सेट्रा। सो यहाँ पे रखना चाहिए या वहां पे रखना चाहिए, स्टिल नॉट क्लियर, बट ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जनरली इसको यहाँ पे ही रखते हैं एल्कलीज के साथ। ओके, सो वेयर वर वी? ओके, सो दिस पॉइंट इज आल्सो डन। मेंडलीव्स के प्रॉब्लम जो थे पीरियोडिक टेबल में वो काफी निकल जाते हैं, सिर्फ एक ही रह जाता है। नेक्स्ट, the modern periodic table contains 7 horizontal rows called periods 1 to 7. So if you see 7 rows है, right? Row number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ये जो है वो लास्ट रो है, और ये नीचे के दो है, हम देखते हैं क्या है। ओके, बट लास्ट रो कौन सा है? 7th रो। तो इन रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। सो हाइड्रोजन इज इन फर्स्ट पीरियड, बेरिलियम इज इन second period, then gallium is in third period, rubidium is in fourth period, cesium is in fifth period, and oganesson is in seventh period. Okay, next, give me a minute. Okay, similarly 18 vertical columns in this table are called groups 1 to 18. So यहाँ पे 18 कॉलम्स दिखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट, सो ऑन एंड सो फोर्थ 18 तक। तो जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको हम लोग ग्रुप्स बोलेंगे, और जो वर्टिकल कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके प्रॉपर्टीज सेम होंगे। It started raining very heavily, that's why you all can hear that background noise. Okay, next, atomic numbers are serially indicated in the upper part of these boxes. So अगर तुम लोग ने यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखा, यहाँ पे 19 लिखा है, यहाँ पे 74 लिखा है, यहाँ पे 61 लिखा है। So all these numbers are basically atomic numbers. Again, what is atomic numbers? उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, that is the meaning of atomic numbers. Apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. These are called lanthanide. Okay, how do you pronounce it? Lan, lan, th is th, nid is night, lanthanide. Lanthanide series and actinide. AC is ac, ti is t, nid is night, actinide, actinide, lanthanide and actinide. So ये जो नीचे के दो रोज अलग से रखे हैं उनको लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। कहाँ पे है? यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार मार्क किया है और यहाँ पे भी स्टार मार्क है, यानी ये जो पूरा का पूरा रो है इट एक्चुअली बिलोंग्स ओवर हियर इन दिस स्टार मार्क। सेकेंडली उसी तरह नीचे यहाँ पे हैश ये सिंबल यूज किया है, हैश। ओके, एंड यू कैन सी वो स्टार वाले ये जो सेकेंड रो है दैट बिलोंग्स ओवर हियर जहाँ पे हैश मार्क किया। अभी यहाँ पे क्यों नहीं रखा है? द रीजन यहाँ पे नहीं रखा है आर टू। वन इज, अगर तुम ये पूरे के पूरे रो को यहाँ पे फिट कर लोगे तो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर बहुत लंबा हो गया तो उसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स रीजन नंबर वन। सेकेंड रीजन इज उनके प्रॉपर्टीज काफी अलग है। सो ये जो फर्स्ट रो है उनको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, सेकेंड रो है उनको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो उनके प्रॉपर्टीज काफी अलग है, इसलिए उनको अलग से ही रख दिया ताकि पीरियोडिक टेबल को पढ़ना भी इजी हो जाए, एनालाइज करना इजी हो जाए, और क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग है तो उनको अलग से ही रख दिया। ओके, नेक्स्ट, गिव मी अ मिनट। यस, so there are 118 places for elements in the modern periodic table. So total कितने हैं? Total elements if you count there are 118 elements in the modern periodic table.
Very recently, formation of a few elements was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. So I'll tell you a fun fact. Okay, so when I was in 10th standard, I passed my 10th standard, I think in 2012. Yes, I think in 2012 I passed my 10th standard, and I also studied the modern periodic table first time in my 10th standard, like you people are doing, right? So जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे जो लास्ट 3-4 एलिमेंट्स है, इनके नाम नहीं पता थे. Why? Because they have उनको एक्सपेरिमेंट यानी उनको फाइंड कर लिया था, एक्सपेरिमेंटली एक दो जगह पे फाइंड किया था, बनाया था, पर उनका नाम नहीं डिसाइड हुआ था. सो फाइनली अभी कुछ ही सालों पहले ये जो लास्ट के 3-4 एलिमेंट्स है, उनके नाम फाइनलाइज हुए. ओके, और फिर जो साइंटिस्ट उसको लैब में बनाता है उस एलिमेंट को, उसको अलाउ किया जाता है कि उसका नाम दो. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिसन ये नाम दिया है, मॉस्कोवियम एक नाम दिया है. सो दीज आर द नेम्स विच दो साइंटिस्ट हैव डिसाइडेड, या फिर जो लैब ने ढूंढा है. फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है, उस सिटी में एक लैब है जिसने वो एलिमेंट को ढूंढ के उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया. सो उस लैब को बोलते हैं कि आप बताओ क्या नाम देना है, फिर वो लोग जो नाम बताएंगे उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूज करते हैं. ओके, सो ये सारे नाम्स रिसेंटली ऐड हुए हैं. सो अभी रिसेंटली पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया है. मैं जब 2012 में पढ़ रहा था पूरा खत्म नहीं हुआ था. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? कि बस 8 सालों में पूरा का पूरा टेबल खत्म हो गया. यानी नॉट द एंटायर टेबल, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग टू मी कि मेरे टाइम पे पूरा कंप्लीट नहीं था, तुम लोग को भी पूरा कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल रहा है. ओके, आई एम काइंड ऑफ जेलस. ओके, where were we? Okay, next. The entire periodic table is divided into 4 blocks. कौन से 4 blocks? S block, P block, D block, F block. कहाँ पे दिख रही है ये blocks? ये जो पहले दो ग्रुप्स है, these two groups come under S block. फिर बाकी के जो है, I think 12 minus 3 would be 10. 12 minus 3 is not 10, but अगले 10 columns जो है या फिर groups are D block elements. These over here, 6 groups, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18, दे फॉर्म द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. और यहाँ पे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को जो अलग अलग रख दिया, दोज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 4 अलग अलग ब्लॉक्स में है. ये 4 अलग अलग ब्लॉक्स क्यों बने हैं, एस का मीनिंग क्या है, पी का मीनिंग क्या है, डी का मीनिंग क्या है, एफ का मीनिंग क्या है, एंड व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द एलिमेंट्स, दैट विल सी इन डिटेल इन द कमिंग लर्निंग सेशंस. ओके, बट जस्ट नो कि 4 ब्लॉक्स होते हैं. लेफ्ट साइड के दो जो ग्रुप्स है, दोज आर एस ब्लॉक. राइट साइड के जो 6 ग्रुप्स है, दोज आर पी ब्लॉक. बीच में जो बच गया दैट इज डी ब्लॉक, और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के जो अलग से रखा है दैट इज एफ ब्लॉक. So I'll need to remember that. Okay. Next, another interesting thing, the metalloid elements lie along the border of the zigzag line. ये zigzag line कहाँ पे है? So if you see यहाँ पे एक zigzag line वो लोगों ने ड्रॉ किया, राइट? सो zigzag line के आजू बाजू, बॉर्डर पे यानी आजू बाजू सारे मेटलॉइड्स होंगे. व्हाट आर मेटलॉइड्स? जो कभी कभी मेटल के जैसे भी बिहेव करते हैं, कभी कभी नॉन मेटल्स के जैसे भी बिहेव करते हैं. ओके, सो दोज आर मेटलॉइड्स. मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होगा प्रॉपर्टीज में. So boron, for example, silicon, germanium. As is arsenic, I think. Sb is antimony. T is tellurium. Po is polonium. Next, At is astatine. So ये सारे जो elements मैंने बोले हैं, all these are considered as metalloids. So ये zigzag line के border पे सारे metalloids होंगे. Next point is, all the metals lie on the left side of the zigzag line while all the non-metals lie on the right hand side. So left side में सारे metals होंगे, right side में सारे non-metals होंगे. So left side में for example chromium देख लो, यहाँ पे है magnesium, Fe is iron, cobalt, copper, zinc, sodium. All these are metals, right? So zigzag line के left side में. And non-metals के example, oxygen is a non-metal, krypton is a non-metal, iodine is a non-metal. All these non-metals will be on the right hand side. So zigzag line के border पे metalloids, left side में metals, right side में non-metals. All these things you will need to remember. Okay, last point for this learning session, the relation between atomic number of an element and its electronic configuration, okay, is clearly seen in the modern periodic table. अभी electronic configuration क्या होता है, I'm not going to tell you in this learning session, but next time when we begin the next learning session, we're going to quickly revise electronic configuration of what does it mean,
ये आपने ऑलरेडी 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट आई एम गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाउ यू डू यू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ डू यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वील कंटिन्यू विद आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, सो अभी जितने भी लर्निंग सेशंस बाकी है इस चैप्टर में, इन ऑल द लर्निंग सेशंस वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, each and everything we're going to analyze with respect to this table, and there are many things to analyze, there are many things to study about it. इसे दिखने में काफी इजी लगता है, अच्छा इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए एटॉमिक नंबर्स पे, बट देयर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन स्टडी अबाउट इट. दैट्स व्हाट मेक्स दिस टेबल सो ब्यूटीफुल, बिकॉज़ देयर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर टेबल. और इसलिए हम लोग अरेंज करने के लिए पीछे लगे थे. एक बार अच्छे से अरेंज कर लिया पूरे एलिमेंट्स को, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टडी ऑल दी एलिमेंट्स. ओके, so that's it for this learning session. I hope you all enjoyed and you learned something new, and I hope you all see me in the next learning session. Till then, bye and peace.